हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 7 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡੀ ਲੰਬਰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੀ ਲੰਬਰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਿ ਜੇ ਲਿਮਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an + 1 upon an, ਜੇ ਇਹ ਲਿਮਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਦੈਨ ਕਨਵਰਜੈਂਟ, ਗਿਵਨ ਸੀਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਕੌਣ ਕਨਵਰਜੈਂਟ? ਦੈਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮ ਸੀਰੀ ਸਿਗਮਾ an ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਅਤੇ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਇਹ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝੋਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਗਮਾ a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n plus x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਜਾਂ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਜਾਂ x ਲੈਸ ਆ ਜਾਂ a ਲੈਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ n a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਅਪੋਨ a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੈਨ ਰਿਪਲੇਸ n ਬਾਏ n + 1 a n + 1 ਅਪੋਨ an + 1 then x n + 1, then find n + 1 upon n which is equal to, पहले a लिखोगे an + 1 upon an + 1 plus x n + 1। हाँ जी स्टूडेंट, हाँ जी डोर बंद कर दो। ओके, हाँ जी स्टूडेंट, n + 1 upon n ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ an plus x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n upon a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ a ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ an plus x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n upon an + 1 plus x n + 1 ਇੰਟੂ a, ਇੱਕ a ਬਚਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ a ਬਚਿਆ ਇੰਟੂ a। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ n + 1 upon n। ਹੁਣ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੇਸ ਫਸਟ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ a ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ a ਆ। ਜੇ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ a ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ a upon x ਹੋਏਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 1, ਓਵਰ 'ਚ ਲੈ ਆਓ। ਸੋ a upon x ਹੋਏਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ, x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਦੇ 2 ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਦੇ 2 ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਉਹਦਾ ਆ ਸਕਦਾ 0, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ x ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਆਏਗਾ। ਇਫ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ 2 ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ a ਓਵਰ x ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ a upon x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ, ਜਦੋਂ n ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਐਜ਼ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਖਿਆਲ। ਫਸਟ ਕੇਸ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ a, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ a upon x ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਸੋ ਜੇ a upon x ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ ਤਾਂ a upon x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਰੋਗੇ 0 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਵੇਅਰ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਲਿਮਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ n + 1 upon n ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ a upon x ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਫਿਰ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਕਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ
एक्स रेस टू पावर एन कॉमन करो उपरों, नीचों भी तुसी की करोगे एक्स एन प्लस 1 कॉमन करोगे, इत्थे की आएगा, इत्थे आ गया फिर ए अपॉन एक्स रेस टू पावर एन, इत्थे हो गया प्लस 1, इत्थे ए कॉमन किया, ए ओवर च आ गया ए अपॉन एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 इंटू ए। हुण की देख रहे हैं असी कि एक्स रेस टू पावर एन तो कैंसल हो जाना, इत्थों एक एक्स बचेगा तुहाडे कोल, ए अपॉन एक्स रेस टू पावर एन तो 0 आ, ये लिमिट 0 ਨੂੰ टेंड करती आपां हुणे दस चुके हैं। सो इत्थे 1 अपॉन एक्स बचया, ये हो गया 0 प्लस 1, ਉਹਦਾ रीजन असीं पहलां दे चुके हैं, 0 प्लस 1 हो गया इंटू ए। सो मेरे कोल आ गया ए अपॉन एक्स मिलिया मैनू, एंड ए अपॉन एक्स की है लैस दैन 1। सो बाय डी लंबर्ट रेशो टेस्ट, बाय डी लंबर्ट रेशो टेस्ट ये हो गया लैस दैन 1, इस करके कन्वर्जेंट। हाँ जी, असी जो ये लिमिट फाइंड की लैस दैन 1 आ गई, तो बाय रेशो टेस्ट कह लो या डी लंबर्ट रेशो टेस्ट कह लो, सिग्मा जू एन इज़ कन्वर्जेंट। सो इस केस में हो गया कन्वर्जेंट बिकॉज वो लैस दैन 1 आ गई लिमिट। हुण असीं केस करांगे सैकेंड केस करिए। सैकेंड केस किहड़ा करोगे, केस करिए सैकेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल। किहड़ा केस कीता सी असीं, हुण असीं करांगे लैस वाला केस, एक्स लैस दैन ए वाला केस करो, विच इंपलाइज एक्स अपॉन ए लैस दैन 1, विच फरदर इंपलाइज एक्स अपॉन ए रेस टू पावर एन करोगे, 0 ਨੂੰ टेंड करेगा एज एन टेंडिंग टू इनफिनिटी। एक्स अपॉन ए लैस दैन 1, जे लैस दैन 1 है तो यदि पावर एन करोगे आंसर आएगा 0 एज एन टेंडिंग टू इनफिनिटी। सो इस केस विच एक्स अपॉन ए बनना चाहिए, जे एक्स अपॉन ए बनाना तो तुहानूं ए रेस टू पावर एन कॉमन करना पएगा। ए रेस टू पावर एन कॉमन करो, की आ जाएगा इत्थे 1 प्लस एक्स अपॉन ए रेस टू पावर एन। ओके, नीचों की कॉमन करना पएगा ए एन प्लस 1, ये 1 बचया, इत्थे आ गया एक्स अपॉन ए रेस टू पावर एन प्लस 1 इंटू की सी ए। तो तुसीं देख रहे होने ए रेस टू पावर एन नूं ए नाल मल्टीप्लाई करोगे, ए एन प्लस 1 हो जाएगा, हो गया कैंसल आउट। सो की बचया, लिमिट्स पुट करोगे 1 प्लस 0 ओवर वी 1 प्लस 0, आंसर आ गया 1। तुसीं कहोगे सर ये 0 किवें लिखिया होया उपर, कि जे एक्स अपॉन ए लैस दैन 1 आ तो उसकी पावर इनफिनिटी करोगे, एन करोगे तो वो 0 आएगा। सो आंसर आ गया 1। सो रेशो टेस्ट हो गया फेल। सो डी ए लंबर्ट रेशो टेस्ट हो गया फेल, नलायक, रेशो टेस्ट हो गया फेल, जू एन प्लस 1। सो रेशो टेस्ट हो गया 1, जे लिमिट दी इस लिमिट की वैल्यू जो 1 आ रही है, सो रेशो टेस्ट हो गया फेल। हाँ जी, रेशो टेस्ट हो गया फेल। जे ये टेस्ट हो गया फेल, फिर कोई होर मैथड बारे सोचना पएगा। तो असी किस मैथड बारे सोचे करना, असी फिर डायरैक्ट लिमिट लैके देखांगे। इस केस में फिर असी डायरैक्ट लिमिट लवांगे इस केस में, क्योंकि ये तो हो गया टेस्ट फेल, फिर असी डायरैक्ट ही लिमिट लवांगे। नाउ केस सैकेंड चलता पिया, असी वो डायरैक्ट ही लिमिट लवांगे एज एन टेंडिंग टू इनफिनिटी जू एन। डायरैक्ट ही लिमिट लो जो स्टेटमेंट च एन टेंडिंग टू इनफिनिटी जू एन की आ ए एन, डायरैक्ट ही लिमिट लो ए एन अपॉन ए एन प्लस एक्स रेस टू पावर एन। केस यही चलता पिया, आ वाला केस यही चलता पिया मेरे को। सो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी ए रेस टू पावर एन कॉमन कर लो, ए रेस टू पावर एन कॉमन कर लो नीचों, 1 प्लस एक्स अपॉन ए रेस टू पावर एन हो गया। ओके हो गया, हाँ जी, ए रेस टू पावर एन कैंसल आउट हो गया। सो लिमिट जो लिमिट लाओगे तो की मिल गया 1 प्लस 0, क्योंकि असीं कह चुके हैं एक्स अपॉन ए रेस टू पावर एन 0। सो आंसर आ गया 1, आंसर आ गया, डायरैक्ट लिमिट लिया आंसर आ गया 1, डायरैक्ट लिमिट लिया आंसर आ गया 1 विच इज़ नॉन 0। रिजल्ट ये आ कि जे कन्वर्जेंट होवे तो लिमिट 0 होंदी है, बट जे लिमिट 0 आ गई तो असीं कन्वर्जेंट नहीं कह सकते, क्योंकि कन्वर्स नहीं ट्रू। बट जे नॉन 0 लिमिट आई है तो मैं ये कह सकदा सिग्मा ए एन इज़ नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट नहीं, ये तो असीं कह दिता, बट
इट इज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज बट इट इज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है सो मैं पक्का ग्रैस कह सकदा गरंटी दे नाल कि फिर डाइवर्जेंट होएगा सो इस केस विच डाइवर्जेंट आ गया इस केस विच डाइवर्जेंट आ गया इस केस विच असीं लाया तो असी रेशो टैसट वो हो गया सी फेल इत्थों स्टार्ट किया सी रेशो टैसट लगाना आ वाला बट वो हो गया फेल फिर असी डायरैक्ट लिमिट लैके उस कंसैप्ट नूं यूज़ किया डायरैक्ट लिमिट नूं असी यूज़ किया केस उही चलदा पिया एक्स ओवर ए लैस दैन 1 सो कॉमन भी असी जिद्दां इत्थे कीता सी ए वाला फैक्टर कॉमन किया सो एक्स अपॉन ए रेज़ टू पावर एन हो गया 0 सो लिमिट नॉन जीरो आ गई नॉट कन्वर्जेंट पॉजिटिव टर्म सीरीज इस करके डाइवर्जेंट होएगा सो केस फस्ट जिहड़ा सीगा उहदे च असीं शो किया कि कन्वर्जेंट आ सैकेंड केस विच असीं ये शो करता कि वो उस केस विच जदों असीं एक्स लैस दैन ए लैंदे आ तां डाइवर्जेंट हुंदा हुण असीं करांगे केस नंबर थर्ड हुण असीं करांगे केस नंबर थर्ड विच केस वैन एक्स इज़ इक्वल टू ए वाला केस करांगे जे एक्स इज़ इक्वल टू ए आ ये केस करांगे लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी पहला तो असी जू एन प्लस 1 अपॉन जू एन की कर रहे हैं असी भला की कर रहे हैं असी रेशो टैसट अप्लाई करते हैं असी हमेशा ही रेशो टैसट ही अप्लाई करना बहुत यूज़ करना असी रेशो टैसट में हाँ जी एक्स हाँ जी जिथे एक्स आ उत्थे भी ए पुट कर दो जिथे एक्स है ना उत्थे भी ए पुट कर देंगे असी ए रेज़ टू पावर एन प्लस 1 इंटू ए तो तुसी देखोगे की मिलिया ये की है टू रेज़ टू इंटू ए रेज़ टू पावर एन ए बेस सेम पावर ऐड होके हो जाना 2an प्लस 1 अपॉन च भी आ 2an प्लस 1 कैंसल करके आंसर 1 आ गया सो अगेन रेशो टैसट फेल सो रेशो टैसट फेल सो रेशो टैसट फेल फिर असीं की करांगे असीं डायरैक्ट लिमिट वाले कंसैप्ट ते जावांगे असीं फिर असीं डायरैक्ट लिमिट वाले कंसैप्ट ते पहुँचे असीं डायरैक्ट लिमिट दे कंसैप्ट ते पहुँचे फिर तो की होया लिमिट किहड़ा केस चलदा पिया केस किहड़ा चलदा पिया एक्स ए इक्वल एक्स ते ए की आ इक्वल सो कॉमन करके कैंसल कर दो 1 अपॉन 2 सो 1 अपॉन 2 आया विच इज़ नॉन जीरो सो मैं ये कह सकदा समेशन जू एन मे भी मेरे को पिछले केस में ए एन लिखा गया ए एन नहीं जू एन की गल हो रही है इत्थे सो समेशन जू एन इज़ नॉट कन्वर्जेंट बट इट इज़ आल्सो पॉजिटिव टर्म सीरीज बट इट इज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज सो सिग्मा जू एन इज़ डाइवर्जेंट सो एक हुण आपां इनू एंड च लिख दईए की लिख दईए असीं एंड च की लिखीए हैंस सिग्मा जू एन इज़ कन्वर्जेंट इफ एक्स ग्रेटर दैन ए ते सी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट कित्थे कित्थे होया लैस दैन इज़ इक्वल टू ए ते बाकी तुसीं चैक कर लिओ मैनूं हुण पिछला याद नहीं कित्थे कित्थे कन्वर्ज आया सी मैनूं लगदा कि पहले केस विच कन्वर्जेंट आया सी दूसरे केस च भी डाइवर्जेंट आया सी तीसरे च भी डाइवर्जेंट आया इज़ इक्वल टू ए वाले ते सो ये साडा आंसर आ हुण असीं करदे हां नैक्सट इहदे नाल दी एक होर क्वेश्चन हाँ जी साडा नैक्सट क्वेश्चन थोड़ा जिहा सिंपलीफाई करांगे असीं इहनूं क्योंकि दो तरीके दे नाल क्वेश्चन आ सकदा ये भी स्टेटमेंट आ सकदी है जां तुसीं इनू इस तरीके थोड़ा मॉडिफाई करोगे एलसीएम आएगा एक्स रेज़ टू पावर एन इत्थे हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 एक्स ग्रेटर दैन 0 सो स्टेटमेंट इस तरीके भी आ सकती है इस तरीके भी आ सकती है इस तरीके आती है तो भी असी इदा इस फॉर्म कन्वर्ट करके असी फिर क्वेश्चन करांगे सो स्टेटमेंट जे असी देखीए तो दोनों तरीकों के नाल उन्होंने क्वेश्चन लिखा ए भी लिखा तो ए भी लिखा सो हुण असीं इहनूं करांगे सॉल्व चाहे हुण इत्थे डिनोट कर लो ए एन दे नाल चाहे कर लो जू एन दे नाल कोई प्रॉब्लम नहीं
क्योंकि इत्थे किहड़ा साडे कोल ए है, सो ए एन की है गिवन एक्स रेज टू पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n। फिर असी ए एन प्लस 1 लिखांगे विच इज़ एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स 2n प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1, रिप्लेस n बाय n प्लस 1। सो ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन कैलकुलेट करोगे, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स 2n प्लस 2 प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n अपॉन एक्स रेज टू पावर n। थोड़ा सिंपलीफाई करांगे तो तुहाडे कोल मिल जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 2 इंटू एक एक्स कैंसल हो गया तो एक एक्स बचेगा तुहाडे कोल। इत्थे पहुँच गए। हुण दो केस होणगे, जे तां इत्थे ए हुंदा तां असीं केस करने सी एक्स ग्रेटर दैन ए, एक्स लैस दैन ए, एक्स इज इक्वल टू ए। हुण 1 आ, केस करांगे एक्स लैस दैन 1, एक्स ग्रेटर दैन 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। 3 केस करांगे। सो केस फस्ट एक्स ग्रेटर दैन 1। सो जे एक्स ग्रेटर दैन 1 है, सो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा लैस दैन 1 विच इंप्लाइज 1 अपॉन एक्स की पावर सम n करोगे 0 हो जाएगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो लिमिट कैलकुलेट करोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वैल्यूज़ पुट करो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 1 इंटू एक्स। देखो एक्स तो ग्रेटर दैन 1 है, डायरैक्ट लिमिट लोगे तो आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। सो डायरैक्ट लिमिट नहीं लैनी, असी S1 अपॉन एक्स की फॉर्म च कन्वर्ट करना। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 2n कॉमन करो, सो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 1, एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 1 कॉमन, सो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 1 इंटू एक्स। सो इनू तीनों मिला के ये कैंसल आउट हो गया। सो बाकी जो बचा वो की बचा 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1। सो रेशो टेस्ट फेल, रेशो टेस्ट फेल। ठीक जी, रेशो टेस्ट हो गया फेल। जे फेल हो गया फिर असी किहड़े कंसैप्ट ते जाना, की फैक्ट यूज़ करना, फिर असी डायरैक्ट लिमिट लावांगे। फिर कंसैप्ट यूज़ करांगे डायरैक्ट लिमिट वाला। नाउ हाँ जी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डायरैक्ट लिमिट लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an ए वाला, ये असी डायरैक्ट लिमिट लैन जा रहे हैं। एक्स रेज टू पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n। कंसैप्ट उही केस उही चलता पाया साडा। केस किहड़ा चलता पाया जिहदे विच 1 अपॉन एक्स लैस दैन 1 है। सो 1 अपॉन एक्स की फॉर्म च कन्वर्ट करो, एक्स रेज टू पावर n, एक्स रेज टू पावर n, एक्स रेज टू पावर n, नीचे एक्स रेज टू पावर 2n कॉमन। सो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 1, एक फैक्टर हो गया कैंसल आउट, तो की मिलया 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। ओके, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। समथिंग रॉन्ग है, थोड़ा चेक करिए इनू, किते मैं गलती कर चुके हैं। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। एक्स n प्लस 1 सी इत्थे, हाँ ये एक्स बचा सी, एक्स 2n प्लस 2 ओके, हाँ ठीक है। हाँ जी, इत्थे मैं गलत लिख गया सी, 2n प्लस 2 सी, ये थोड़ा ठीक कर लो। 2n प्लस 2 थोड़ी गलती लग चुकी है। 2n प्लस 2 सी, 2n प्लस इत्थे 2 सी, सो इत्थे 2n प्लस 2 सी,
इस करके साडा सम जिहड़ा वो गलत हो रहा। नीचे एक्स बचना, इत्थे 1/x भजेगा, तुसीं चैक कर लेना, इत्थे 1/x आएगा तो इन्हें फेल नहीं होना। इन्ना भी नलायक नहीं हैगा कि बार बार फेल ही हो जाए। सो 1/x आया, तुसीं दोबारा इनू देख लो सारे, क्योंकि गलती लग चुकी सी मैनू। फस्ट केस करते पे x ग्रेटर दैन 1, 1/x लैस दैन 1, तो मैं गलत वैल्यू पुट करती सी इत्थे 2n+2c, इस करके जो कॉमन किया x 2n+2 कॉमन आया। सो ये आ गया मेरे कोल 2n+1 पावर होनी है। सो एक पावर नीचे बचेगी, 1/x बचेगा नीचे, तो 1/x की है लैस दैन 1। सो बाय रेशो टेस्ट, सिग्मा EN इज़ कन्वर्जेंट। सो फस्ट केस में कन्वर्जेंट आ गया। हुण असीं करन जा रहे हैं केस नंबर सैकेंड। हुण असीं करते हैं केस नंबर सैकेंड केस की लओगे x ग्रेटर दैन 1, किहड़ा केस सीगे? हाँ जी, हुण आपां लवांगे केस x लैस दैन 1। x लैस दैन 1 नहीं कीता पहले, हुण असीं करांगे x ग्रेटर दैन 1 इंपलाइज x ग्रेटर दैन 1 कर चुके असीं, हुण करांगे x लैस दैन 1 वाला केस। इंपलाइज x रेज़ टू पावर n 0 एज n टेंडिंग टू इनफिनिटी बिकॉज x लैस दैन 1। सो हुण x की आ लैस दैन 1 आ, जे x लैस दैन 1 आ सो ये 0 नूं टेंड करेगा। सो 1 + 0 इंटू x मिल गया। जे x मिल गया तो x की आ लैस दैन 1। सो बाय रेशो टेस्ट, सिग्मा EN इज़ कन्वर्जेंट। हुण असीं करांगे केस थर्ड। सो ये दो केस जिहड़े असीं कीते उन्हां च कन्वर्जेंट हो गया। सो थर्ड केस करन जा रहे हैं वैन x 1। केस थर्ड करिए वैन x इज़ इक्वल टू 1। केस थर्ड वैन x 1, उस केस में तुसीं कैलकुलेट करो an + 1 इस तरीके लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी। हाँ जी, an + 1 की वैल्यू जिथे x है उत्थे 1 पुट करना, 1 + 1, चाहे पहले वैल्यू पुट कर लो x रेज़ टू पावर 2n, 1 + x रेज़ टू पावर 2n + 2 इंटू x। जिथे x है तुसीं 1 सबस्टिट्यूट करोगे, 1 + 1 इंटू 1। सो 2/2 1 कैंसल करके 1 आ गया, रेशो टेस्ट हो गया फेल। सो रेशो टेस्ट हो गया फेल। इस करके किसी होर मैथड में असीं हुण डिस्कस करांगे। रेशो टेस्ट हो गया फेल। जे रेशो टेस्ट फेल हो रहा तो असीं डायरैक्ट लिमिट वाले कंसैप्ट ते जावांगे। नाउ केस उही चलदा पिया थर्ड, n टेंडिंग टू इनफिनिटी। डायरैक्ट लिमिट बारे सोचो, x रेज़ टू पावर n, डायरैक्ट लिमिट लवांगे असीं an की, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, ऊपर हो गया x रेज़ टू पावर n, 1 + x रेज़ टू पावर n 2n। सो x नूं किहड़ा केस चलदा पिया x1। सो केस चलदा पिया x1। सो सबस्टिट्यूट कर दो x 1 + 1, सो विच इज़ 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो we can say sigma an cannot convergent, कन्वर्ज कर ही नहीं सकता। बट इट इज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज, इट इज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज। सो सिग्मा an इज़ डाइवर्जेंट, हैंस सिग्मा an इज़ convergent if x greater than 1 and x less than 1 and divergent if x is equal to 1। ये 4 क्वेश्चन है टोटल इस टाइप के। हुण बाकी क्वेश्चन तुसीं आप ट्राई करोगे। साडा हुण अगला नैक्सट क्वेश्चन, हाँ साडा अगला क्वेश्चन ये वाला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट।
इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ, तो ये क्वेश्चन सैट होंदा ही होंदा हर साल एग्जाम के अंदर। इस टाइप का क्वेश्चन शो दैट द सीरीज़, ये वाली सीरीज़ जिहड़ी कि दो सीरीज़ नूं ऐड करके बनी है, 1/2, 1/2 स्केयर, 1/2 क्यूब, 1/2 4, 1/3, 1/3 स्केयर। Cauchy root test indicate convergence but ratio test is inconclusive। रेशो टेस्ट कोई कनकलूजन नहीं दिंदा, बट Cauchy रूट टेस्ट जिहड़ा वो कन्वर्जेंस दे रहा इस क्वेश्चन की, ये असीं शो करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोल्यूशन बड़े ध्यान नाल समझना इस सीरीज़ नूं। लिखोगे पहले गिवन सीरी इज़, तुसीं स्टेटमेंट तो उतार चुके हैं, सो गिवन सीरी इज़ लिख के तुसीं अगे लिखना करना इनू शुरू करोगे। मैं स्पेस लैक ऑफ स्पेस होने करके मैं इनू रफ कर देना। सो गिवन सीरी मेरे को ये वाली है, सो ये मेरे को हैगी है गिवन सीरी, इस टाइप की मेरे को गिवन सीरी है। बड़े ध्यान नाल देखो, जे मैं सिग्मा ए एन कवां, सपोज करो मैं इनू जो सिग्मा ए एन कवां, तो की देखोगे ये मेरी है फस्ट टर्म, ये मेरी है सैकेंड टर्म, ये मेरी थर्ड टर्म, ये मेरी फोर्थ, तो ये होगी फिफ्थ, तो ये होगी सिक्सथ, ये सैवनथ, ये एट्थ एंड सो इस तरीके होंदा। बड़े ध्यान नाल समझना कि असीं इनू एज ए सिंगल सीरी किवें डील करना। A2n लिखांगे असीं, इदां ही असीं एक लिखांगे A2n -1 किहदे कोल आंदा 1/2 रेज़ टू पावर n, 1/3 रेज़ टू पावर n एंड A2n + 1 1/2n + 1। देख लईए पहले, सपोज करो तुसी n नूं 1 सबस्टिट्यूट किया तो इत्थे की आना 1 सबस्टिट्यूट करोगे, इत्थे आ जाएगा A1। कहने का मीनिंग इत्थों सानूं फस्ट टर्म मिलेगी A1, सानूं मिलेगा A1 मिलेगा। n1 पुट करके देखो 1/2, ये फस्ट टर्म A1 मिल गया। n1 पुट किया 1/3 की पावर 1, 1/3 भी मिल गया। इत्थे 1 पुट करो, इत्थों की मिलना थर्ड A3 मिलना 1/2 रेज़ टू पावर 2, वो भी सानूं थर्ड टर्म भी मिल गई। ये n नूं 1 पुट करते हैं A1 मिलता, ये n नूं 1 पुट करते हैं A2 मिलता, ये n1 पुट करते हैं तो सानूं ये इदां टर्मां मिलदियां। फिर तुसीं n नूं 2 पुट करके देखो, इत्थे n2 पुट करोगे तुहानूं मिलेगी थर्ड टर्म, थर्ड टर्म n 2 पुट करो, थर्ड टर्म दोबारा आ गई, कोई गल नहीं, असीं कनैक्ट कर रहे हैं असीं उन्होंने। ये आएगी फोर्थ, 2 पुट करोगे फोर्थ टर्म, बिल्कुल सही है। n2 पुट करो 5, फिफ्थ टर्म मिलेगी, 2 पुट किया पावर 3, बिल्कुल सही है। एंड सो कहने का मीनिंग है सब कुछ सैटिस्फाई हो रहा, यदा मीनिंग है असीं सही लिख के आए हैं। असीं ईवन, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये ईवन टर्मां मेरे को वो इत्थों मिल रही हैं एंड सो हाँ जी। सब तो पहला असीं करनी आ Cauchy टेस्ट की गल, Cauchy टेस्ट की गल करांगे पहले। n टेंडिंग टू इनफिनिटी की पढ़िया से Cauchy टेस्ट, जे मेरे को an आ तो मैं पावर 1/n करदा, जे लैस दैन 1 आ जाती है उसकी लिमिटिंग वैल्यू तो असीं कह दिंदे सी कन्वर्जेंट आ, तो असीं चैक करते हैं। तो साडे कोल मैं सब तो पहला 2n - 1 की ही गल कर ला, ਜਾਂ मैं A2n की गल करा, A2n की पावर कराँगा मैं 1/2n, इसकी लिमिट कैलकुलेट करिए n टेंडिंग टू इनफिनिटी। A2n की वैल्यू आ मेरे को 1/3 रेज़ टू पावर n एंड रेज़ टू पावर है मेरे को 1/2n। सो n कैंसल आउट हो गया, तो कितना आंसर आएगा मेरे को 1/√3 विच इज़ लैस दैन 1। सो लैस दैन 1 आ गया, लैस दैन 1 की करती होंगी है सीरी कन्वर्जेंट। सो गिवन सीरी कन्वर्जेंट आ जाएगी। इधे जे मैं देखा n टेंडिंग टू इनफिनिटी लवां, A2n + 1 ले लो, A2n + 1 रेज़ टू पावर भी करोगे 1/2n + 1। इनू कैलकुलेट करके देखो, इनू कैलकुलेट करोगे A2n + 1 की वैल्यू है 1/2 रेज़ टू पावर n + 1 रेज़ टू पावर 1/2n + 1।
So which is further limit n tending to infinity 1 upon 2 raised to power n plus 1 upon 2n plus 1. Further limit n tending to infinity 1 upon 2 n common 1 plus 1 upon n ਇੱਥੋਂ ਵੀ n common so 2 plus 1 upon n cancel out ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 upon 2 raised to power 1 over 2 ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ 1 upon under root 2 which is again less than 1. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਸਟ ਦੋ ਹੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ from first and from second, so first and second implies sigma an, first and second implies from, so from first and second implies by Cauchy's root test sigma an is convergent. ਸੋ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ a2n plus 1 upon ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ, ਜੇ ਉੱਪਰ an plus 1 ਆ ਅਤੇ ਨੀਚੇ an ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ a2n plus 1 upon a2n ਓਕੇ। ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸੋ 1 upon 2 raised to power n plus 1 upon 3 raised to power n। ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਕੀ ਮਿਲਿਆ 1 over 2 raised to power n into 1 upon 2 into 3 upon 1 raised to power n okay। then limit n tending to infinity 3 upon 2 raised to power n over 2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 3 over 2 is greater than 1 implies 3 over 2 tending raised to power n tending to infinity as n tending to infinity ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੋਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ a2n ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹ ਟਰਮ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋਗੇ 1 upon 3 raised to power n over 1 upon 2 raised to power n ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 upon 3 raised to power n। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਬਿਕੋਜ਼ 2 over 3 ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਂਸਰ 0। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓਗੇ 4th from ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 and 4th। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ ਲਗਾਇਆ ਆਂਸਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਕਨਵਰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਡਾਇਵਰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਫਰੋਮ 3 and 4 ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ
इज़ इनकनक्लूसिव, इनकनक्लूसिव। ठीक है जी, जे तो दोवें लैस आ जाते ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਆ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਜ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਇਨਕਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੌਸ਼ੀ ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਡੀ-ਲੰਬਰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ। ਇੱਦਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੌਸ਼ੀ ਰੂਟ ਟੈਸਟ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਰੇਸ਼ੋ ਡੀ-ਲੰਬਰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਆਪ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਇਹ 3 ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।